Good evening, students. Am I audible? Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening. So just give us 5 minutes. I believe there is some technical glitch and we'll be solving that very soon and we'll get back. Okay. If in the meantime you have any doubts, you can ask. Yes, do we have some doubts or shall we start our class? Shall we start? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So as we all know that Russia has now invaded Ukraine. So now it gets important and whatever the syllabus asks us to study, we'll study that. And जो फालतू का clutter है वो हम side कर देंगे. So importance is Minsk agreement. There were two agreements, 1 and 2. Okay. Minsk, as we all know, is the capital city of Belarus. Okay. These were ceasefire agreements. Between Ukraine and Russia and the two regions which have now been declared independent by the Russian authorities. Okay. नाम क्या है याद करने की कोई जरूरत नहीं है. तो जो सेपरेटिस्ट हेल्ड रीजन्स है यूक्रेन एंड रशिया, ये तीनों के जो बीच में ये दोनों अग्रीमेंट्स हुए थे एंड दे वर सीज फायर एग्रीमेंट्स. मिन्स्क इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस. बस इतना करने की जरूरत है और इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. इज बाय द वे इज द बोर्ड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इसमें रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही है ज्यादा? नो सर. नो सर. ओके. तो इससे रिलेटेड जो ज्योग्राफी है वो पढ़ लेते हैं. एक्सक्यूज मी सर. यस सर एक डाउट सा था इसी में. ये जो नेटो की जो बाउंड्रीज थी और सर ये जो वार्सा पैक्ट था, सर ये दोनों समझ नहीं आए. बताता हूँ, एक सेकंड. पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उस पे भी आते हैं. सो ये ज्योग्राफी है रीजन की. दिस इज रशिया. साउथ ईस्टर्न पार्ट आर द सेपरेटिस्ट रीजन्स. वॉल्यूम कम कर दो आप, ज्यादा. कहां से? अच्छा यहां से. जस्ट अ सेकेंड. Yes. So this is the region, Russia, Ukraine. The region, we have Belarus and other countries that we studied. So this is the basic geography of the region. And just a second. Yes. So we need to understand this Nord Stream. You must all have been reading about it in the newspapers. Nord Stream 1 and 2. So it is between Russia and Germany. It is a natural gas pipeline delivered from Russia to Germany. Almost to the tune of 50% of the gas requirements of Germany and then the Europe is catered to by Russia. So this one is Nord Stream 1 and the one shown in yellow and the one shown in green, they run almost parallel to each other. They
that is Nord Stream 2. It was recently completed, so directly double हो जाएगी रशिया का export gas to the Germany and the European countries. So Nord Stream 1 and Nord Stream 2, sorry, इनका geographic location आप याद कर लीजिए. And somebody please tell me कि ये जो sea है, इस sea का नाम क्या है? No, 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 no. वो नीचे southern part में यूक्रेन के. What is the name of this sea? Sir, Baltic Sea. Good, good, good. Baltic Sea. बाल्टिक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है? फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, यू कैन से रशिया. रिमेंबर कि ये जो छोटा सा एरिया है ना, ये रशिया का पार्ट है. ओके, सो रशिया भी है और यहां से तो है ही एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया. ओके, सो ये कंट्रीज है. जस्ट सी द लोकेशन. अपने जहां आप नोट्स बनाते हो या तो इंटरनेशनल रिलेशंस या ज्योग्राफिक लोकेशंस और करंट अफेयर्स में ये डायग्राम बना लो. दीज क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन यूपीएससी प्रीलिम्स एंड कैन बी आस्क्ड. तो एक बार ये डायग्राम्स बना लो आप. नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी दिखा देना उसमें, फ्रॉम रशिया टू जर्मनी. और डेनमार्क है. डेनमार्क लगता नहीं है बाल्टिक सी से, ये सी का नाम कुछ और है, नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड एंड जर्मनी. When you are done with the diagram, just tell me. Done? No, sir. Sir, is it okay to take a screenshot, then after that we'll draw it? Yeah. Please take a screenshot. Yeah, did, sir. See, why am I asking you to draw it on your notebook is, वो आपकी माइंड मेमोरी में बैठ जाता है और when you keep revising from your notebook, so it remains fresh in your mind. फोन पे स्क्रीनशॉट्स तो बहुत ही ज्यादा वैसे पड़े होते हैं. So anyway. No, I mean to say कि क्लास एंड होने के बाद इसको एक बार ही कर लेंगे. Yes. When you're done with it, just tell me. We'll move forward. Done, sir. नहीं, जर्मनी फिर आगे कंट्रीज के साथ शेयर करेगा, बट वैसे जर्मनी के साथ है डायरेक्ट जो नॉर्ड स्ट्रीम है. दिस इज एन अंडरग्राउंड पाइपलाइन गैस की. Done, sir. Okay, let's move forward. Since we are reading about this Ukraine and Russian region, so there have been questions related to this region and the general location, which is the Black Sea location. Okay, so we'll quickly see about it. This is Ukraine. This is Ukraine. This is Russia. This whole is Black Sea. यहाँ पे Mediterranean Sea है, which is a part of Atlantic Sea. This is Turkey. Bulgaria. This is also Turkey. Okay. और ग्रीस नहीं लगता है. यहाँ पे टर्की का पार्ट आ जाता है और यहाँ पे बुल्गारिया आ जाता है. सो ग्रीस नहीं लगता. रोमानिया, ये भी देख लो. मोल्डोवा नहीं आता है. मोल्डोवा की बाउंड्री यहाँ पर है, तो मोल्डोवा नहीं आता है. यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की,
Georgia, Russia. Georgia was also, this location was also in use because news because of Armenia and Azerbaijan conflict. यहाँ पे अर्मीनिया और अजरबैजान है इस रीजन में, ठीक है. तो ब्लैक सी है, this is the Crimean Peninsula which was annexed by Russia. This is Sea of Azov. This strait, this water body, it is known as the Kerch Strait. Kerch Strait. Okay. This is Sea of Marmara. अब यहां पे दो स्ट्रेट्स हैं, यहां पे. Somebody please tell me कि ये वाले स्ट्रेट का नाम क्या है? The one which joins Black Sea to the Sea of Marmara. ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो प्लीज फोकस करो, रिपीट भी होने के बहुत आसार होते हैं इनके. तो द स्ट्रेट विच joins Black Sea with Sea of Marmara, what is its name? Okay, so this is Bosphorus Strait. Bosphorus Strait. Written? Yes, sir. और ये जो एजियन सी है या फिर मेडिटेरेनियन सी है, उसको सी ऑफ मरमरा से ज्वाइन करने वाला यहां पे डार्डेनेलिस स्ट्रेट है. डार्डेनेलिस स्ट्रेट मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि ब्लैक सी और बॉस्फोरस स्ट्रेट, बी और बी दोनों साथ साथ ही हैं. ओके, और डी दूसरी तरफ है. सर लास्ट वाला रिपीट करना. This is Dardanelles Strait which joins Aegean Sea or Mediterranean Sea with Sea of Marmara. How I have remembered it is Black Sea यहाँ पर है और यहाँ पे Mediterranean Sea या Aegean Sea है, तो B and B are in vicinity. So Bosphorus Strait and Black Sea are the Bosphorus Strait is towards the Black Sea or Dardanelles Strait is towards the Mediterranean Sea. Okay? ये भी लोकेशन अच्छे से बना लो अपनी नोटबुक में, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जैसा भी आपको सूटेबल हो. We will also study about one more location located related to this region only, but at the later part of our class. उससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. Shall we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So our next topic is about refugees. It is a very burning topic. Okay. So एक बार इसकी definition लिख लीजिए. According to the UNHCR, United Nation इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना. आई बिलीव इट इज समथिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स कमीशन, या नहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं, इट इज समथिंग, आप देख लेना. वैसे इट इज UNHCR. ओके. अ रेफ्यूजी इज समवन who has been forced to flee his or her country because of persecution,
persecution, war और वायलेंस। कोई भी वो ह्यूमन जिसको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वॉर या वायलेंस, उसको हम रेफ्यूजी बोलते हैं। ये इंटरनल माइग्रेंट्स से अलग है, क्योंकि इंटरनल माइग्रेंट्स जो हैं वो अपनी कंट्री की अपनी जो बाउंड्रीज हैं उसको नहीं चेंज करते। सो फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल भी लिख ही लो, रोहिंग्यास that stay in India are refugees, but जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो refugees नहीं है। Okay, those will be called as internally displaced persons. It's a very general term, not necessary to be written. So how is it different from migrant or internally displaced persons? Is it clear? Yes, sir. Okay. सो इससे रिलेटेड हमें ये पढ़ना है कि इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है पर्टेनिंग टू रेफ्यूजीज, ठीक है। सो इंडिया ट्रीट्स फॉरेनर्स एंड रेफ्यूजीज विद द सेम लॉ। देयर वाज फॉरेनर्स एक्ट 1954 और साथ में ये जो पासपोर्ट्स एक्ट है वगैरह वगैरह, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके साथ दे ट्रीट फॉरेनर्स एंड रेफ्यूजीज एट द सेम लेवल। सो रेफ्यूजीज का कोई स्पेशल लॉ नहीं है, और जो ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन है उनके नाम लिख लीजिए, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन। यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन, इंडिया इसकी पार्टी नहीं है और इंडिया के पास कोई खुद का स्टैंडर्ड लॉ भी नहीं है। और जो हमने अभी ऑफिस लिखा था ना यूएनएचसीआर का, ये मैंडेट्स देता है। इंडिया फॉलोज दिस मैंडेट्स, डज नॉट एग्री टू दिस मैंडेट बट फॉलोज दिस मैंडेट। ओके, अपनी प्रैक्टिसेस में या अपने लॉज में, which the recent example is this Citizenship Amendment Act of 2019, ठीक है। So India followed this. इससे related हमें पॉलिटी के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। This principle specifically was used in this ethics paper of this year, GS4 mains का जो पेपर था। So it is principle of non-refoulement. Principle of non-refoulement. Is this visible? Yes, sir. मुझे visible नहीं है, पता नहीं क्यों। So principle of non-refoulement. So what it is, आप लिख लीजिए इसको। It says that a person fleeing from his own country, ब्रैकेट में रेफ्यूजी लिख लेना, should not be forced to return to a country where they face serious threat to their life or freedom. It says that person fleeing from his own country, bracket refugees, should not be forced to return to a country where they face serious threats to their life or freedom. जैसे for example, जो रोहिंग्यास है, they have come here from Myanmar. So by law or by the action of the executive, उनको वापस हमें म्यांमार में भेजना नहीं है, because they face persecution in their own country. Okay, so this is principle of non-refoulement. This principle
Supreme Court has said that this comes under the Article 21 right to life. Okay, ये भी लिख लो. Supreme Court has said that principle of non-refoulement, it is a part of Article 21 right to life. Bottom line is India continues to grant asylum and it respects the UNHCR mandate on refugees. So हम लोग केस टू केस बेसिस पे उनसे डील करते हैं rather than having a elaborate law. Understood? सर ये SC का क्या स्टेटमेंट था? It is a part of. It is this principle of non-refoulement. It is part of Article 21 right to life. मतलब एक fundamental right है ये. I forgot your question about the Russian issue. क्या था वो? It slipped my mind. सर वो नाटो और एक वो था सर I forgot क्या था. वॉर्सो पैक्ट सर. हाँ, वॉर्सो पैक्ट यूएसएसआर के टाइम पे बना था. ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और रशिया और यूएसएसआर के बीच. जैसे नेटो था वो यूएस लेड अलायंस था, मिलिट्री अलायंस, उसी तरह वॉर्सो पैक्ट था यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस टू काउंटर नेटो. और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें. वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड. बस. हाँ, कोल्ड वॉर के टाइम पे. ठीक है? Understood? Excuse me, sir. Yes. So this topic we just did, so there is no certain law for refugees in India, so they will be treated as foreigners, right? They will be treated at par with foreigners. So law application towards them will also be like it is done with foreigners. Yes. Okay, so for example, sir, in fundamental rights, some rights are just for citizens and some are for everyone. So they will fall under the everyone one. They will not be granted fundamental rights that are only for citizens. See, there are some fundamental rights which are available only to citizens, and then there are some fundamental rights which are available to everyone. For example, Article 21, the right to life, it is applicable to everyone. So these laws which are applicable to everyone, or these rights which are granted to everyone, they will be granted to the refugees as well. Okay, And sir. certain rights which are available only to the citizens, they won't be allowed. Like for example, there is this equality of opportunity in public employment. So those won't be granted to the refugees because those are available only to the citizens of India. Yes, sir. Yes. Anything else? Shall we move forward? Yes, sir. Okay, so our next topic is India UAE CEPA, which is Comprehensive Economic Partnership Agreement. In general term, it is being called as an FTA or a free trade agreement, but being students and aspirants of UPSC, you are going to use the term CEPA, CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. इसकी full form वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ लोगे. It is an FTA only, but the term is CEPA. It is different from general FTAs, so that's why I'm saying don't use the word India UAE CEPA FTA. Use the term India UAE CEPA. Okay. So इससे related, we'll write some data. So UAE is the third largest partner, the third largest trade partner of India after USA and China. And UAE is the third largest trading partner of India after USA and China. The current trade, एक्चुअली नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको अपने दिमाग में एक बार रजिस्टर कर लेना. अगर कोई इंडिया यूएई पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आया
तो इसको यूज कर लेना, ठीक है। सो 60 बिलियन यूएस डॉलर्स है प्रेजेंट ट्रेड, इसको हमें इंक्रीज करके, मतलब सेपा का गोल है 100 बिलियन यूएस डॉलर पे लेके जाना है। 100 बिलियन डॉलर इज द नंबर इंडिया और यूएसए के ट्रेड का प्रेजेंटली। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो लिख लो। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंडिया यूएई सेपा: to reduce the tariffs of goods and services. सर रिपीट करना। To reduce the tariff for goods and services between the two countries. To give zero duty access to Indian exports to UAE. Zero duty access to Indian exports to UAE. Employment generation of 10 lakh jobs in labor intensive sectors. Now there is one important point especially in this SEPA. So as we all know, Indian pharmaceutical industry, it is one of the biggest in the world. और हमारी स्पेशलिटी जो है वो है जेनरिक मेडिसिन में, यानी जो कॉस्टली ड्रग्स होते हैं हम वो नहीं बनाते, हम जेनरिक ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है। सो इंडियन मेडिसिन जो है इनका अप्रूवल मिलना इन अदर कंट्रीज इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देयर आर IPR लॉज जो कि उन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं, उन कंट्रीज की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। सो सेम गोज फॉर UAE एज वेल, एंड एनीवे UAE नीड्स, एवरी कंट्री नीड्स जेनरिक मेडिसिन। सो इसमें क्लॉज है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल USA एंड UK, अगर उसके अंदर हमारी मेडिसिन को रजिस्ट्रेशन और ऑथराइजेशन मिल जाता है, सो ऑटोमेटिकली UAE में भी हमें ऑथराइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज लिख लो, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन एंड ऑथराइजेशन for Indian medicines in case of their regulatory approval in developed countries like USA and UK, etc. Automatic registration and authorization for Indian medicines in case of their regulatory approval in developed countries like USA, UK, etc. इसका पॉइंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे फॉलो द लॉज एंड ऑथराइजेशन बाय दीज कंट्रीज, दिस USA एंड UK एंड जर्मनी। सो अगर इनमें मिल गया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। लास्ट पॉइंट लिख लो कि इट विल हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स to gain access West Asian and African markets through UAE. It will help Indian exporters gain market access of West Asian and African countries through UAE. So it will act as a pit stop. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you please repeat the employment point? Okay. So employment generation of 10 lakh jobs in labor intensive sectors. Roughly 1 million jobs will be created in labor intensive centers in India due to this trade deal.
Shall we move forward? सर लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। एक्सपोर्टर्स वाला या मार्केट मेडिसिन वाला? एक्सपोर्टर वाला सर। इंडियन प्रोडक्ट्स गल्फ कंट्री में कैसे एक्सपोर्ट होगा ज्यादा से ज्यादा? यूएई की लोकेशन यहाँ पर है। यूएई के जो ट्रेड डील्स हो रखी हैं या फिर जो मार्केट डील्स हो रखी होंगी वो बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी हो रखी होगी। एंड क्योंकि इजराइल जो अभी हमारा इब्राहिम पैक्ट हुआ था उसकी वजह से इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस हो गए हैं और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी हैं। उसका रीजन ये है कि यूएई इज वेरी रिच एंड इट इज अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। तो जो बाकी की कंट्रीज हैं वो इसको मार्केट को बहुत अच्छा एक्सेस देती हैं। तो इंडिया को है जो इंडिया को बार बार बाकी कंट्रीज के साथ करना पड़ेगा। सो व्हाट विल हैपन इज जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो यूएई में तो अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगे, लेकिन यहां से वो बाकी की मार्केट्स में भी एक्सेस ले सकते हैं इजीली। लेट्स से कि कोई सैटेलाइट ऑफिस कर दिया या वहां पे कोई छोटी इंडस्ट्री लगा दी, रीपैकेजिंग शुरू कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर सपोर्ट करना है तो यहां से वीट भेजी, वीट को वहां पे प्रोसेस किया या फिर यहां से डायरेक्ट फ्लावर भेजा, रीपैकेज किया और बाकी की कंट्रीज में भेज दिया एज एन एक्सपोर्ट। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. So our next topic is ICJS, Interoperable Criminal Justice System. Interoperable Criminal Justice System. आई होप यू ऑल रिमेंबर हमने आर्टिकल 261 किया था जिसमें फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज था कि किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन वन स्टेट या जुडिशियल अथॉरिटी इन अदर वन स्टेट जो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ऑल ओवर द इंडिया उनको फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस समहाउ हैज इज लिंक्ड टू दैट ओनली इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता था कि इन 1980s एंड 90s कि लेट्स से एमपी में देयर आर सम गूंस और क्रिमिनल्स, सो वो बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान में या फिर यूपी में आ जाते थे एंड पुलिस जो थी उनके पास ना उनका डेटा होता था ना उनके से रिलेटेड कोई केस होता था और वो उनको पकड़ नहीं पाते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आईसीजेएस से देयर विल बी सिस्टम्स जिससे कि जो डेटा है क्रिमिनल्स का और क्राइम्स का वो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द पुलिस स्टेशंस एंड ऑल ओवर दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो शेयर हो जाएगा जिससे कि ये वाले इश्यूज हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, सो द फुल फॉर्म इज इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, सो somebody guess कि which ministry will be pushing for criminal justice, ICJS? Ministry of Social Justice? No. हमारा जो पूरा पुलिस नेटवर्क है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये होम मिनिस्ट्री। सो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बट जो एजेंसीज है ना जो कि काम कर रही हैं, दोज आर टू एजेंसीज। वन इज एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि हमारे जो क्राइम नंबर्स होते हैं, क्राइम का डेटा होता है, उसको पब्लिश करती है, एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। This was established under the Digital India program, जो कि एक रिपोजिटरी की तरह रन करता है।
National Informatics Center. So NCRB and National Informatics Center under the Ministry of Home Affairs will be in charge of applying the interoperable criminal justice system. Okay, so इसमें एक आप अपना line लिख लो जिससे कि you will be able to remember. It is to enable seamless transfer of data. To enable seamless transfer of data and information among different pillars of criminal justice system. Sir, repeat करना starting. Okay. To enable seamless transfer of data and information among different pillars of criminal justice system. अब ये pillars क्या है ये पढ़ते हैं. हमारे पूरे criminal justice system में there are roughly 5 pillars. Okay, so the first one is police. CBI, CID वगैरह वगैरह currently comes under the definition of police only. इसके नीचे ना ब्रैकेट में एक पार्ट लिख लो CCTNS. इसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम CCTNS. क्या है ये? एक टाइप का डैशबोर्ड है जिसके अंदर ऑनलाइन FIRs हो गए. जैसे यू वुड बी नोइंग कि आप आजकल ऑनलाइन FIR रजिस्टर कर सकते हैं. ऑनलाइन जो हमारी बाकी रिपोर्ट्स होती हैं वो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं. फिर जो पुलिस है, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है, हिमाचल प्रदेश पुलिस है, CCTNS पे किसी भी चीज का, किसी भी क्रिमिनल या क्राइम का डेटा होने के बाद वो इंटरऑपरेबल हो सकता है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दिस CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, which is used by the police. Okay, so the next is e-forensics. जो हमारा फोरेंसिक सिस्टम है, फोरेंसिक apparatus है पूरी कंट्री का. Then we have e-courts. जुडिशरी भी जो है वो ये डेटा पुल कर सकती है इससे. सो क्या होता है कि जैसे देयर हैव बीन वेरियस इश्यूज एलिजेडली कि पुलिस फैक्ट्स जो है उसको मोल्ड कर देती है या फिर जो उनका एविडेंस होता है उसको ठीक से नहीं करती. तो जो CCTNS के अंदर या ICJS के अंदर डेटा या एविडेंस होगा वो डिजिटली ही कोर्ट्स भी पुल कर पाएंगे. तो ये चीज काफी हद तक कम हो जाएगी. ठीक है. देन वी हैव e-prosecutions, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज वगैरह होते हैं, प्रोसिक्यूशन लॉयर्स वगैरह जो होते हैं, e-prosecution. एंड द लास्ट वन इज e-prisons. वी ऑल नो एंड आप लोग भी आजकल पढ़ रहे होंगे कि प्रिजन्स के अंदर जो अंडर ट्रायल लोग हैं वो बहुत ज्यादा है और असली में जो कन्विक्टेड लोग हैं वो बहुत कम है. अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60-40 की रेशियो है. तो 60% ऑफ आवर प्रिजन्स आर ऑक्यूपाइड बाय द अंडर ट्रायल, लेट्स नॉट से criminals but prisoners, under trial prisoners. Okay, so these are the 5 pillars. इसमें से हमें 2 चीजों के बारे में पढ़ना है, CCTNS and e-courts. CCTNS I have already told you कि क्या चीज है. इसमें CCTNS की एक सब हेडिंग बना के उसके एग्जाम्पल्स लिख लो कुछ. For police verification purposes, इंक्लूडिंग पासपोर्ट वेरिफिकेशन. जैसे अभी पासपोर्ट बनवाने जाते हो या जॉब्स के अंदर जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं इन आवर फॉर्मल सेक्टर, उनके अंदर एक पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है. समटाइम्स बैक इन द डे इट टुक अराउंड 15 to 30 days.
but CCTNS आने के बाद it will be like it will take roughly 1 or 2 day, क्योंकि जो जितना भी रिकॉर्ड है लोगों का वो डिजिटली ही अवेलेबल होगा. Then reporting a crime including cyber crimes, साइबर बुलिंग है वगैरह वगैरह, वो सब रिपोर्ट हो जाएगा CCTNS पे. ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ केस प्रोग्रेस, बहुत बड़ा इशू है कि आप केस रजिस्टर कर देते हो लेकिन पुलिस स्टेशन के फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको, तो ये ऑनलाइन ट्रैकिंग भी हो जाएगी. नेशनल लेवल क्राइम एनालिटिक्स, and a national database of crime and criminals. The next subheading, e-courts. ये प्रोग्राम एक्चुअली 2005 में लॉन्च हुआ था, but not much of a push was given. But then when the digital revolution came in India, somewhere around 2015-2016, this project also received a push. और जितनी भी हमारे judicial system था, especially in the COVID times, it was able to keep up. जितना भी it was able to cope up, वो it was due to the e-courts project. Okay, so it is a very important point, and you can write this in actually this whole point you can write it in your internal security part. दो क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं मेंस में GS 3 में, so it is very important in that matter. E-court system, इसके लिए भी एक लाइन लिख लीजिए. It is a pan India platform or pan India project to transform the judicial system by IT enablement of courts. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो जब हम अपने जुडिशियल सिस्टम में इन्फ्यूज कर देंगे, सो दैट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट. ओके, सो इसमें भी somebody प्लीज गेस कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट में. Ministry of Law. Somebody please tell me, ये कोर्ट्स में कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी? Ministry of Law and Justice. Yes, good. Ministry of Law and Justice. हो सकती थी बट है नहीं. ये एक्सरसाइज करने का काम यही है कि जब ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं ना तो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बहुत ज्यादा. तो अगर अभी थोड़ा अपना माइंड लगाओगे इन चीजों में तो यू विल गेट यूज्ड टू दीज थिंग्स. सो जितना हम नैरो डाउन कर पाए अपनी मेंटल प्रोसेस को, अपने गेस वर्क को, उतना बेटर होगा हमारे लिए. सो इज दिस अंडरस्टूड? शैल वी मूव फॉरवर्ड? सर ये स्टेटमेंट जो लिखवाई थी, इट इज अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट, एक बार रिपीट. E-courts is a pan India project to transform the judicial system by IT enablement of courts. IT means information technology. You can also use the word ICT, information and communication technology, but I believe IT does the job. Okay. Shall we move forward? Yes, sir. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. Recently there were some achievements. 7th year हुआ है वैसे इसको, but achievements were very good in this season. So उसके लिए somehow it is important for both prelims and mains. So again, somebody please tell me the ministry for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Ministry of Agriculture. Agriculture side. Good.
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसमें, ये आप साइड में लिख लेना अपना। सो इसके लिए एक लाइन लिख लो, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम that aims to provide insurance support to farmers suffering from crop loss and damage arising from natural calamities. It is a flagship scheme that aims to provide insurance support to farmers suffering from crop loss and damage arising out of natural calamities. सर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बीमा होता है यानी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि कोई भी आपदा आ जाए जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट, इस केस में क्रॉप्स, फसलें अगर वो खराब हो जाती हैं ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, तो जो उसका प्राइस होगा, जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस होगा, वो आपको दे देंगे। जैसे वी ऑल नो कि स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड सेंट्रल इंडियन रीजन जो फार्मर सुसाइड है, इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। और जो हमारे फार्मर्स हैं दे आर इन अ वेरी विशियस साइकिल कि उनकी कभी कभार क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्रॉप लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको पैसा कम मिलता है। तो ये इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो स्कीम है जिससे कि वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द डैमेज फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज। तो फार्मर सुसाइड है, हमारे क्रॉप लॉसेस है, जैसे मॉनसून में अभी विंटर डिस्टर्बेंसेस की वजह से स्पेशली इन दिस 2022 जनवरी जो रेन्स थे वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग थे, तो जो हमारी वीट की फसल थी ना वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। तो जिसने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले रखी होगी, उसका अगर फसलें खराब भी हो गई तो भी उसका जो पैसा था वो उसे मिलेगा। सो ये इंश्योरेंस है। द स्कीम नेम इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। तो इसके बेनिफिशियरीज है ऑल फार्मर्स। स्टार्टिंग में जब ये पायलट प्रोजेक्ट हुआ था तो कुछ स्टेट्स में जब शुरू हुआ था तो उसमें ऑल फार्मर्स था, बाद में इसे बोल दिया गया कि बिकॉज एनीवे वी नो कि यूनियंस एंड सम अदर एलिमेंट्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट द ग्राउंड लेवल और उनको अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है। सो उन्होंने बोला कि इसको आप नेसेसरी नहीं कर सकते। सो उसके बाद इसको बाय चॉइस कर दिया गया कि जो फार्मर अपना इंश्योरेंस लेना चाहता है वो ले सकता है। सो बेनिफिशियरीज आर ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग द शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स, यानी जो लैंडलेस जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको क्या होता है कि उनके पास कोई एसेट नहीं है तो उनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, उनको लोन नहीं हो सकता, बट ये जो स्कीम है वो उनको भी बेनिफिशियरी ट्रीट करती है। सो ऑल फार्मर्स, एनी फार्मर वेदर लैंडलेस और शेयर क्रॉपर और any tenanted farmer, they are the beneficiaries। तो इसके लिए अब इंश्योरेंस है तो कुछ प्रीमियम पे करनी पड़ेगी, ऑल्दो हेवीली सब्सिडाइज्ड, बट तो जो प्रीमियम है ना हमारा, प्रीमियम इज जो पैसा आपको देना पड़ता है इंश्योरेंस अवेल करने के लिए। ठीक है, सो प्रीमियम जो है वो क्रॉप्स के लिए अलग अलग है। देयर आर 3 मेन सीजन्स, खरीफ, राबी और ज़ैद सीजन है जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो खरीफ, रबी एंड हॉर्टिकल्चर। तो जो खरीफ का प्रीमियम है, एक्चुअली ये कभी ना प्रीलिम्स में आ सकता है,
तो बस अपने बैक ऑफ द माइंड एक बार रजिस्टर कर लेना, ऐसा नहीं है कि आपको ये वैल्यूज रटनी ही रटनी है, ठीक है। सो ये 2% है फॉर खरीफ, 1.5% फॉर रबी, क्योंकि रबी सीजन में क्रॉप फेलियर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसके लिए हॉर्टिकल्चर के लिए 5%, 5% ऑफ दी सम इंश्योर्ड। जैसे लेट्स से कि 1 एकड़ का प्लॉट है और 1 एकड़ में किसी ने इंश्योरेंस करवा रखी है फॉर एग्जांपल ₹5 लाख, तो किसी भी फार्मर को फॉर खरीफ क्रॉप 2% पे करना पड़ेगा, ओके। मीनिंग 10,000, नॉट दैट इट इज इंपॉर्टेंट। सो खरीफ के लिए 2% ऑफ दी सम इंश्योर्ड, 1.5% फॉर रबी, हॉर्टिकल्चर के लिए 5%। नेचुरली हॉर्टिकल्चर के लिए ज्यादा होगी, बस इसमें और करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके लिए अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आए ना, तो इसके सिग्निफिकेंस तो ऑलवेज यू कैन राइट, वी हैव डिस्कस्ड। चैलेंजेस ये है कि जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है दैट इज वेरी ब्लीक, क्योंकि जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का है, और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो मशीनरी होती है वो इतनी ज्यादा वेल ऑयल्ड नहीं होती कि वो बेनिफिशियरीज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। सो वन, दैट इज चैलेंज। नंबर 2, करप्शन तो एनीवे यू कैन राइट, वो तो एवरग्रीन पॉइंट है ही कहीं ना कहीं। नंबर 3 इज जो सिस्टम है पेमेंट्स का, जो ये पेमेंट्स सम इंश्योर्ड की जो पेमेंट होगी उसमें डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन सम इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द चैलेंजेस फॉर दिस इंश्योरेंस स्कीम, ओके। शैल वी मूव फॉरवर्ड? सर इस स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर है? सॉरी, सर इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर है कि ओनली सेंटर? सी स्कीम सेंटर की है, बट जो एप्लीकेशन है या जो शेयर है वो स्टेट्स का भी है। शेयर का कितना परसेंटेज है एक्चुअली दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एनीवे वो आपको किसी भी स्कीम के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, वो कभी पूछा नहीं जाता है, ओके। शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Okay. So our next topic actually is about some Buddhist artifacts. These Buddhist artifacts were recently recovered in Bihar, some 1200 year old artifacts. So उससे related जो हमारे concepts हैं, we'll read about those, because anyway ये questions बहुत ज़्यादा common है art and culture में and repeatedly have been asked in UPSC prelims. Okay. So what we are going to read today about is अवलोकितेश्वर, और इसके अंदर पद्मपानी आइडल या स्कल्पचर जो भी है, आप आइडल ही लिख लो। क्या है मैं समझाता हूं अभी पूरा। और बोधिसत्व व्हाटएवर। सो वी ऑल नो कि बुद्धिज्म में द प्राइम बीइंग इज बुद्ध, ठीक है, बट देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। These are known as those people जो कि कभी ना कभी बुद्ध का जो लेवल था वो अचीव करेंगे अपनी फाइनल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट इक्विवेलेंट ऑफ मोक्ष, वो अचीव करेंगे, बट राइट नाउ दे आर पोस्टपोनिंग इट इन देयर लाइफ सो दैट दे कैन टीच द ह्यूमैनिटी अबाउट द आइडल्स, ठीक है। सो देयर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट बोधिसत्वस। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो दलाई लामा है, ही इज नोन एज इन तिब्बतियन आइडियोलॉजी ही इज अ पार्ट ऑफ अवलोकितेश्वर, ठीक है, विच मीन्स, जो इसकी मीनिंग है वो मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। सो हर बोधिसत्व का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। सो इसके लिए ना एक बार पहले बोधिसत्व की वो लिख लो आप डेफिनेशन।
Bodhisattvas are enlightened beings who have postponed entering paradise in order to help others attain enlightenment. Bodhisattvas are enlightened beings who have postponed entering paradise in order to help others attain enlightenment. This Avalokiteshwar, he is the Bodhisattva of infinite compassion. Bodhisattva of infinite compassion. और ये पद्मपानी वाला जो है, this means the Avalokiteshwar or Bodhisattva who is holding a lotus in his hand, okay, and looking down in compassion. क्या मतलब है वो मैं अभी दिखा देता हूं आपको. Is this visible? Yes, sir. Yes. So you can see lotus, okay, and looking down in compassion. So this is Padmapani, okay. This is Padmapani painting or idol or bodhisattva that you can say, and Avalokiteshwar is a bigger concept of a bodhisattva who is bodhisattva of infinite compassion. ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था ना वो एक बार देख लेते हैं. This was the question. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. ये 2018 में आया था. इसका आंसर टेक 1 मिनट. हर कोई सोच लो एक बार, गूगल मत करना, खुद सोचो एक बार. जितना मैंने पढ़ाया है, इट इज मोर देन इनफ टू आंसर द क्वेश्चन एंड देन विल आस्क. ओके, सो टेक अ मिनट. राइट, तो बताइए. सर ए अवलोकितेश्वर. ओके सर ए. ओके, और सर ए. आर्ट एंड कल्चर होगा तुम्हारा. Anybody else? D option. D. Okay. See, मैंने एक बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी कि अवलोकितेश्वर is that bodhisattva which is of infinite compassion, whose work or job is to show compassion. Okay, and Padmapani is a type of Avalokiteshwar bodhisattva who is holding a lotus in the artifacts that we have recovered. In general बहुत सारे हैं. और क्वेश्चन देखो, with reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? मतलब this was said by Buddha himself कि he will come
again to save the world. This that Buddha will be a fighter Buddha. Okay, and this is a parallel ideology in Hinduism itself, that we say that the 10th avatar of Lord Vishnu, which avatar is it? Sir, Kalki avatar. Okay, so जो Kalki avatar होगा, again that will be a fighter avatar of Vishnu to come to save the world. So इसमें अवलोकितेश्वर तो compassion show करता है, उसका तो कोई concept है ही नहीं to fight or yet to come. Okay, again Lokeshwar, it is a part of Avalokiteshwar only. Actually this is a confusing statement, Lokeshwar कुछ नहीं है. Padmapani, again I have told you कि वो एक part of Avalokiteshwar ही है, मतलब someone who is holding a lotus and looking down in compassion. So Padmapani is a type of Avalokiteshwar. So ये जो C है ना, Maitreya, जो नाम next होगा, Maitreya will be the future Buddha who is yet to come to save the world. So the answer is C. Okay, Avalokiteshwar we know, Lokeshwar actually is nothing. Padmapani we know, and now we know about Maitreya. Okay. Yes, sir. Yes, so now we know about Bodhisattvas and the future Buddha. Let's move forward. The next again is a part of art and culture only. Karakattam dance. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली केरला ने इसे बोला है कि जीआई टैग दिया जाए. ठीक है, सो करकत्तम डांस, इट इज प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु एंड केरला. और फायदा क्या है या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि जो हमारे डांसर्स होते हैं वो बहुत सारे लेवल्स ऑफ पॉट्स जो होते हैं, अर्दन पॉट्स वगैरह या बाकी पॉट्स, वो काफी लेवल के, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ हेड, दिस इज अ पॉट, देन दिस इज अ पॉट, जैसे डिक्रीजिंग साइज में ऐसे हेड पे रख के डांस करते हैं. ठीक है, बस आपको इतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना. कौन सी स्टेट या कौन सी एरिया से है करकत्तम डांस? तमिलनाडु एंड केरला से है. इससे रिलेटेड ये देख लो कि तमिलनाडु में हमारा भरतनाट्यम डांस है और केरला में हमारा दो डांसेस है, एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम. ओके, कथकली एंड मोहिनी अट्टम, ये सारे आप अपने आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए करकत्तम नहीं पढ़ोगे इसलिए क्योंकि इट इज इन द न्यूज. सो करकत्तम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, और इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ये अर्दन पॉट्स जो कि सिर पे रख के द डांसर्स परफॉर्म देयर डांस. ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the next is Vibrant Villages program. Vibrant Villages program. Recently it was introduced in this budget, this 22-23 budget. पहले इससे रिलेटेड कंटेंट लिख लो, समझा मैं बाद में दूंगा. ऑब्जेक्टिव्स लिख लो पहले इसके. देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 1 इज स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. Number 2 is ensuring the residents
do not abandon their villages in search of economic opportunities. Number 1 is strengthening border infra. Number 2 is ensuring the residents do not abandon their villages in search of economic opportunities. So what issue it is going to address, that is crystal clear now. Key number 1 is unemployment in the border areas. Number 2 is the migration due to unemployment. And number 3 is safety and security of the region and hence the country. Focus, you can write कि focus areas क्या क्या होंगे. Number 1 is again village infrastructure. Housing, tourism, road connectivity, decentralized renewable energy, ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी. कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी हमें पहुंचाने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, बट तो decentralized renewable energy by tapping the solar power, the wind power or the hydro power or even geothermal power, we can provide never ending electricity to these areas. Livelihood generation, e-services and digital connectivity. The main focus actually it is to counter the Chinese action along the LAC. ठीक है, ये भी लिख ही लीजिए आप, आपको समझ आ जाएगा. To counter the Chinese action along LAC. अब इससे related you can understand the story. Around 2012 or 2013, then Defense Minister, he outlined India's policy of border infrastructure since independence. So he said कि हमारे जो साथ के countries हैं उनके साथ wars होती रहती हैं and these are remote areas. तो willfully इंडिया ने it was a policy matter कि हम इन जगहों को डेवलप ही नहीं करेंगे, which was as you all can understand this was very discriminatory. So क्या होता था कि जो बॉर्डर एरियाज पे लोग होते थे ना, वो लोग अपने विलेजेस को अबैंडन करके हिंटरलैंड की तरफ आना शुरू कर देते थे या मेजर सिटीज की तरफ आना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में और कुछ उत्तराखंड के एरियाज में भी गोस्ट विलेजेस बनने लग गए थे कि जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर के विलेजेस हैं जहां पे हमारे लोग रह रहे हैं, अब they do not have electricity, they do not have water, they do not have sewage management, they do not have the entertainment services, they have no livelihood opportunities. तो वो वहां पे रहेंगे क्यों? The world is progressing, why shouldn't they progress? So a border push, the border infra push was given after 2015 or 2016, which has now transformed into the Vibrant Villages program. तो क्या है, जैसे we all know कि चाइनीज पॉलिसी क्या है. जैसे अज्यूम कि ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, तो चाइना जो है इन एरियाज पे फोर्स्ड सेटलमेंट्स बनाने लग जाता है. ये एरियाज पे मॉडल विलेजेस बनाने लग जाता है, फोर्स्ड सेटलमेंट्स अपने लोगों को, सिटीजन्स को आके फोर्सफुली वहां पे सेटल कर देता है, और यहाँ पे अगेन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स भी बन जाएंगी, जिससे कि जो फ्यूचर इन्वेजन्स है या अटैक्स है वो बहुत इजी हो जाएंगे. ठीक है, तो उनका एरिया इज वेल डेवलप्ड. वहां पे इन लोगों ने ट्रेन्स भी ला दी हैं, बुलेट ट्रेन्स भी ला दी है. वी ऑल नो कि अभी अरुणाचल के प्रदेश के पास रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी चाइना ने बना दी है, सेटलमेंट्स हो गई हैं, तो उनका एरिया एज अ पॉलिसी मैटर इज वेल डेवलप्ड. ठीक है, एंड एनीवे
जब कोई भी कंट्री वॉर करती है, जैसे अभी आप रशिया यूक्रेन पे भी देख रहे होगे, तो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा आ जाती हैं। अब हमारा बॉर्डर एरिया तो डेवलप्ड नहीं है, उनका बॉर्डर एरिया बहुत वेल डेवलप्ड है, तो इन मैटर ऑफ एनी वॉर और एनी स्कर्मिश हमारी टेरिटरी लूज होने में कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा इंटरनेशनली एज वेल, बट उनकी टेरिटरी लूज होगी तो ह्यूमन राइट्स इशू, सिविलियन कैजुअलिटीज वगैरह वगैरह करके बहुत सारी इंटरवेंशंस हो जाएंगी। सो यहाँ पे इंडिया एज अ पॉलिसी मैटर ही बहुत ज्यादा लूज कर रहा था। सो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, it was now launched in this बजट। तो इससे सिक्योरिटी इंडिया की बढ़ेगी, जो हमारे बॉर्डर इंफ्रा है वहां पे पुश अच्छा होएगा, वहां के लोगों को लाइवलीहुड्स वगैरह मिलेंगी, और हमारा जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है इट विल बी वेरी गुड। आई बिलीव यू ऑल मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि 2019 या 2020 में आवर प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ही मेंशन्ड कि हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो होंगे वहां पे हम एनसीसी बटालियंस को रेज करेंगे, जो कि जो लोकल लोग हैं उनसे जुड़ी हुई होगी, टू काउंटर दिस एनी मिसहैपनिंग्स इन द बॉर्डर, या फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है। जैसे अभी चमोली वाली फ्लड्स हुई थी हमारी देहरादून के पास, नॉर्थ ईस्ट, देहरादून के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वहां पे क्या हुआ था कि द होल रीजन वाज कट ऑफ, और वहां पे कोई लोकल जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले प्रोफेशनल्स थे उनके पास ज्यादा सर्विसेज नहीं थी। तो इस टाइप के बटालियंस या इस टाइप का अगर इकोनॉमिक इंफ्रा हम डेवलप करेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंटरनल सिक्योरिटी में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। ओके, सो दिस वाज द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Okay. So the next concept that we are going to do is about wildfires. Wildfires or forest fires, however you want to put it. So you can just write it. It will be very useful in your environment as well. That according to a recent UNEP study, UNEP, United Nations Environment Program, according to a recent UNEP study लिखने के मतलब नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Wildfires have been projected to rise by 50% by 2100। सो अभी जो वाइल्ड फायर्स हो रही हैं रिसेंटली, यू ऑल नो, अमेज़न में, ऑस्ट्रेलिया में, इन इंडिया ऑल्सो इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हमारी इन उड़ीसा, सिमलीपाल इज इन उड़ीसा, यहाँ पे वाइल्ड फायर्स हुई थी जिससे कि बहुत ज्यादा हमारे इश्यूज आने लग गए हैं, हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होने लग गई हैं, एयर पोल्यूशन होने लग गई है, और हमारी फौना एंड फौना को बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो वाइल्ड फायर्स और फॉरेस्ट फायर्स आर ऑलरेडी अ मेजर प्रॉब्लम। दे आर गोइंग टू इंक्रीज बाय 50% बाय 2100 अगर हम लोग हमारी जो पेरिस क्लाइमेट गोल्स हैं उनको एक्सीड नहीं करते, सॉरी एक्सीड कर देते हैं तो ठीक है। तो जस्ट राइट सम कंटेंट रिगार्डिंग टू दीज वाइल्ड फायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजंस। Number 1 is climate change, change in land use pattern, कि हम फॉरेस्ट को हटा के जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है या अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है वगैरह वगैरह, उसकी वजह से भी वाइल्ड फायर्स होने लग गई हैं। क्लाइमेट चेंज, चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ हीटिंग इफेक्ट, या फिर यू कैन मतलब ब्रैकेट में लिख लो ग्रीन हाउस इफेक्ट। I hope you all know what greenhouse effect is. It was taught to us in 8th or 9th if I'm not wrong. Yes, sir. Yes. So increase in intensity of heating or greenhouse effect.
increasing extent of wildfires. Next, wildfires will become more frequent in areas like tropical forest, ब्रैकेट में इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब लिख लेना, या फिर अमेज़न, हाँ इंडोनेशिया, अमेज़न ये लिख लेना, आर्कटिक, ट्रॉपिकल सवाना, tropical savanna. This is a type of grassland ecosystem in Africa. I hope you all know. ठीक है? So as we all know that reducing this wildfire, the incidence, it is very important for us to achieve our sustainable development goals. ठीक है? Impacts लिख लो इसके wildfires के. Number one, it affects the global carbon cycle. Carbon cycle you are going to read in your environment in detail, so we'll skip that here. It affects the global carbon cycle. ब्रैकेट में या एग्जांपल करके लिख लो, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वास्ट क्वांटिटीज. Carbon dioxide, carbon monoxide, etc., etc. Second is significant economic impact on communities and nations. Then you can write मतलब header बना लो, health. Smoke particulates and toxic particles cause respiratory harm. Respiratory harm, respiratory heart harm, cardiovascular diseases and risk of neurological disorders. दो गैसेस हैं, लेट्स से CO2 एंड CO. CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन दोनों में से कौन सी गैस करेगी? somebody please tell me. कार्बन मोनोऑक्साइड. गुड गुड. इसका आप एक बार समझ लीजिए कि कैसे होता है. जैसे लेट्स एग्जांपल, दिस इज लंग. लंग से हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं वो अटैच्ड होती हैं. इन जनरल क्या होता है कि ऑक्सीजन अटैच होता है यहाँ पे लंग से. ठीक है, तो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होने लग जाती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है. तो हमारे ब्लड लेवल में ऑक्सीजन कम होने लग जाती है, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड, सिंस इट इज अ टॉक्सिक गैस, ये हमारे माइंड में हमारी वेसल्स से इंटरफेयर करती है. कार्बनाइजेशन सर. यस यस यस. ठीक है, नेक्स्ट लिखो कि causes wildlife mortality. जो हमारे एनिमल्स हैं, they are not able to escape these wildfires. Soil erosion, and impacts natural water reserves या फिर wetlands. ब्रैकेट में या स्लैश डाल के यू कैन राइट अबाउट वेटलैंड्स. सो देयर आर सम वे फॉरवर्ड या फिर रिकमेंडेशंस, वो भी लिख लीजिए. इट विल एक्ट एज अ कंप्लीट GS आंसर फॉर यू गाइस. टू रिस्पॉन्ड टू द क्लाइमेट चेंज, as per Paris climate goals. Next is understand. Sir, yes. As per Paris climate goals.
जो हमारी पेरिस क्लाइमेट एजेंडा है उससे जो गोल्स थे, पेरिस क्लाइमेट गोल्स. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड वाइल्ड लाइफ बिहेवियर एंड मॉनिटरिंग. We read about the M stripes and cat rat in the first class or the second class. Do you remember? उससे हम टाइगर्स को ट्रैक करते हैं. So understand wildlife behavior and monitoring. Next is integrate traditional knowledge. Integrate traditional knowledge and fire management practices. As we all know that the Forest Rights Act 2006, it paved the way forward for inclusion of traditional knowledge or the regional tribes or the communities into the sustainable management practices of our forest, or including the wildlife. Okay. Next is strengthen the national and international cooperation. And one last point, promoting sustainable tourism practices. मोस्ट ऑफ द वाइल्ड फायर जो है या फॉरेस्ट फायर्स हैं, उनके कॉजेज ये होते हैं कि जैसे टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं फॉरेस्ट में एंड दे रात को जब वो रुकते हैं तो फायर जलाते हैं. वो फायर को अच्छे से वो पुट आउट नहीं करते एंड इट स्प्रेड्स एंड बिकम्स अ फॉरेस्ट फायर. सो सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस. ओके. So this concludes this topic. Shall we move forward? Yes, sir. Just a second. The next topic we are going to do with a question. It is about UPI, Unified Payment Interface. So this is the question of 2016. Again, take a minute and please answer this. All right, answers. Sir, C. Sir, C. Just a second. Okay, so somebody said A, somebody said D, somebody said C. Or Sir, A. Sir, C. A, C, C, sir. C. Or D. B.
सर सी 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 और okay, so we'll stop here. The correct answer is A, one only. कैसे है वो मैं बताता हूं. With reference to digital payments, consider the following statements. Bheem app allows the user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account. This is correct. इसमें तो किसी को कोई issue नहीं है. There was one person who said D. I believe उन्होंने ये सोचा होगा कि UPI enabled ना हो तो भी हम भेज सकते हैं. ठीक है, वो ट्रू होता अगर यहाँ पे only लिखा होता तो. As such statement में कोई issue नहीं है. ठीक है. Number 2. With a chip in debit card, while a chip in debit card has 4 factors of authentication, Bheem app has only 2 factors of authentication. इसको ऐसे समझो, आप सब फोन पे या गूगल पे या अपनी एप्लीकेशंस यूज करते हो, तो जब आपने पहली बार या एनीवे जब आप उसको यूज करते हो तो एक आप मोबाइल में आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, एक तो आपके मोबाइल की सेफ्टी होती है कि आप एप्लीकेशन लेते हो, एप्लीकेशन की सेफ्टी होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. उसके बाद जो आपके बैंक अकाउंट की सेफ्टी है उसको भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है. तो जो बैंक अकाउंट की है सेफ्टी वो भी एक फैक्टर है. सो नंबर 1 इज मोबाइल, नंबर 2 इज बैंक एंड नंबर 3 इज द पिन दैट यू एंटर. पिन भी एंटर करते हो ना हर ट्रांजैक्शन से पहले 4 डिजिट या 6 डिजिट पिन होते हैं. सो ये 3 फैक्टर है. और जो ये चिप इन डेबिट कार्ड्स है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनकी 2 होती हैं. एक तो होता है डेबिट कार्ड की जो चिप की इंक्रिप्शन होती है which is easily copied, and the second is your pin. तो उसकी 2 फैक्टर होती है, उसकी 4 फैक्टर नहीं होती. ठीक है, सो द आंसर इज A ओनली. यहां पे कंफ्यूजिंग लगे ना तो देखो, ये भीम ऐप जो है वो इसलिए दिया गया था क्योंकि ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन थी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी. इसको किसी भी एप्लीकेशन से, क्योंकि यूपीआई जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी कंपनी कोई भी उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकती है जो कि एनपीसीआई ने बनाया है. तो अपने फैक्टर्स में अपने दिमाग में बनाओ कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मैं यूज करता हूँ. सबसे पहले तो जैसे इफ यू आर यूजिंग फोन पे और गूगल पे और एनी भारत पे और भीम ऐप, सो सबसे पहले मोबाइल की आपकी सिक्योरिटी होती है, उसके बाद बैंक अकाउंट लिंक करते हो उसकी सिक्योरिटी होती है, एंड देन द फाइनल वन इज जो आप पिन डालते हो. ठीक है, तो 3 तो अगर आपने बैठे बैठे गिन ही लिए तो ये फॉल्स हो गई. सो द आंसर इज 1 ओनली. ओके, the news related to this UPI is that it has now been extended to Nepal. Nepal can also use the UPI platform for payment services in its country. ठीक है, shall we move forward? Yes, sir. Okay. So now we are going to do about some locations which have been in news. It's about Falkland Islands. ठीक है, Falkland Island, you can see साउथ अमेरिका के बिल्कुल सदर्न टिप पे ऑन द ईस्टर्न पार्ट, यानी इन द अटलांटिक ओशन अबव एंटार्क्टिका, फॉकलैंड आइलैंड है. इट इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके, ब्रिटेन. ठीक है, बट ये जो कंट्री है ना, ये एक सेकंड, ये जो कंट्री है दिस इज अर्जेंटीना. अर्जेंटीना हैज रिसेंटली सेड कि इसके ऊपर हमारा क्लेम होना चाहिए और हमारी टेरिटरी होनी चाहिए, एंड नाउ चाइना हैज बैक्ड अर्जेंटीनास क्लेम. ठीक है, वैसे तो ये दिस इज पेटी इंटरनेशनल रिलेशंस, तो करने की जरूरत नहीं है, बट ये लोकेशन देख लो, फॉकलैंड आइलैंड्स इन द वेरी सदर्न टिप ऑफ सदर्न अमेरिका along Argentina and an overseas territory of United Kingdoms. इससे रिलेटेड हम ये पढ़ते हैं जो हमारे ओशियन करंट्स हैं. ठीक है,
यहाँ पे वी ऑल नो कि इक्वेटर है, सदर्न इक्वेटोरियल करंट है, नीचे ब्राजीलियन करंट आ जाता है, ब्राजीलियन करंट देन मीट्स दिस एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट और दी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो हम बोलते हैं, ठीक है। ये कोल्ड करंट है, और यहां से जो इस आइलैंड से ही ये जो कोल्ड करंट है इसका नाम पड़ा है, विच इज फॉकलैंड करंट, ठीक है। सो फॉकलैंड करंट इट इज अ कोल्ड करंट जो कि ब्राजीलियन करंट से मिलता है इन दी एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, और फिर अफ्रीका के वेस्टर्न बाउंड्री पे आके मिलता है एज बेंगुएला करंट, विच इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट। अगेन फिर वो हमारे इक्वेटोरियल पार्ट में आके गिनी करंट या साउथ इक्वेटोरियल करंट में मर्ज होके वार्म करंट बन जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. So let's move forward. This is the location that we have to do in detail. Okay. इस पे questions बहुत बहुत ज्यादा common है, ठीक है। So this location, this is the westernmost part of Asia, ठीक है। सीरिया है यहाँ पे, this is लेबनान, ये जॉर्डन है, यहाँ इजराइल है, दिस इज द गाजा स्ट्रिप, दिस इज वेस्ट बैंक, सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। ये वाला जो एरिया है ना, ये दिस इज नोन एज द गोलान हाइट्स। इंटरनेशनली इसको सीरिया का पार्ट माना जाता है, यूएन ऑल्सो ट्रीट्स दिस एज अ पार्ट ऑफ सीरिया ओनली, बट दिस इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ Israel since the 6-day war of 1967, ठीक है। सो ये गोलान हाइट्स है, गोलान हाइट्स के साइड में जो लेक है ना, इट इज कॉल्ड एज, ओके somebody टेल मी कि इस लेक का नाम क्या है? गलील, लेक ऑफ गलील, सी ऑफ गैलीली नाम है इसका, वैसे लेक टाइबेरियस बोलते हैं इसे, लेक टाइबेरियस और सी ऑफ गैलीली। फ्रेश वाटर लेक है। क्यों इजराइल ने ऑक्यूपाई किया था? इफ यू वुड हैव सीन दी वेब सीरीज स्पाई, तो गोलान हाइट्स पे सीरियन सोल्जर्स दे यूज्ड टू स्टेशन, और जो इजराइल के यहाँ पे लेक टाइबेरियस या उस रीजन वाले जो लोग थे, वो दूर से दे यूज्ड टू किल द सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल। इट वाज वेरी इजी, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है प्लेन है, ये माउंटेन्स है, बहुत दूर तक 3-4 किलोमीटर तक विजिबिलिटी बहुत इजी होती थी। तो इन द 6-day वॉर फाइनली इजराइल ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। यहां से गोलान हाइट से या सॉरी लेक टाइबेरियस या सी ऑफ गैलीली से निकलती है जॉर्डन रिवर, ठीक है। ये जॉर्डन रिवर से ही जॉर्डन का नाम पड़ा है। जॉर्डन रिवर देन कम्स इनटू दिस, व्हाट इज दिस सी? What is the name of the sea between Israel or West Bank and Jordan, where this Jordan River comes? This is Dead Sea. This has the lowest point of Asia, Dead Sea, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट होता है ना हमारा, जैसे there is one in this lake of Russia as well. I'm forgetting the name. It is named by B something. But Dead Sea has the lowest point of Asia. So Dead Sea में Jordan River आती है. This is a saline sea, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये आके यहाँ मिल जाती है। अब as you can see, just a second. सर डेड सी ये किसके अंडर आता है?
इंटरनेशनल बाउंड्री है इजराइल और जॉर्डन के बीच में या वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में। ठीक है, अब यस सर। दिस इज मेडिटेरेनियन सी। इजराइल का बॉर्डर लगता है यहाँ पे, इजिप्ट का बॉर्डर लगता है यहाँ पे, और लेबनान का बॉर्डर लगता है यहाँ पे, और ऊपर जाके सीरिया का भी लगता है। ठीक है, बट जॉर्डन जो है वो मेडिटेरेनियन सी में नहीं लगता जाके। ठीक है, एक तो डेड सी से मिलता है, और यहाँ वाला जो सी है दिस इज नोन एज द इंडियन ओशियन या फिर रेड सी का पार्ट है ये। यू कैन जस्ट राइट इट, रेड सी का पार्ट है। और ये वाली जो बॉडी है ना, ये गल्फ, इसमें क्या कौन कौन सी कंट्रीज हैं? एक तो इजिप्ट है, सिनाई पेनिनसुला, इजराइल का छोटा सा पार्ट है, जॉर्डन का छोटा सा पार्ट है, और सऊदी अरेबिया का पार्ट है। ये जो सी है, इस सी का नाम है सॉरी गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ आकाबा, गल्फ ऑफ आकाबा। ये वाला जो रीजन है, यहां पे सुएज कनाल है। ठीक है, सुएज कनाल, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये है गल्फ ऑफ सुएज। गल्फ ऑफ सुएज दोनों पार्ट है रेड सी के, यहां रेड सी है नीचे की साइड, ऊपर मेडिटेरेनियन सी है। सो जो सुएज कनाल है, इट जॉइंस मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी और अटलांटिक ओशियन विद इंडियन ओशियन। ठीक है, और ये कंप्लीटली इजिप्ट के अंदर है। सिनाई पेनिनसुला भी 6 डे वॉर में इजराइल ने अपने अंडर एनेक्स कर लिया था, बट देन इजिप्ट में दे दिया था उसको वापस। तो एक बार कंट्रीज रिवाइज कर लेते हैं। सीरिया मेडिटेरेनियन सी, लेबनान मेडिटेरेनियन सी, इजराइल अगेन, इजिप्ट मेडिटेरेनियन सी, जॉर्डन जो है इट जॉइंस द रेड सी या फिर इंडियन ओशियन, सेम एज सऊदी अरेबिया। जॉर्डन डज नॉट मीट मेडिटेरेनियन सी। ये ऊपर फिर टर्की आ जाता है, जो अभी हमने ब्लैक सी वाला पार्ट किया था, ये उसके बिल्कुल नीचे का पार्ट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ट्राई एंड सॉल्व दिस। 2015 का क्वेश्चन है, टेक 1 मिनट। ऑप्शन बी जॉर्डन। जॉर्डन सर। ओके, ऑप्शन बी जॉर्डन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। So this will be all from my side today. If you have any doubts, you can ask. So, sir, at the boundaries of Israel, there is some West Bank area. Sir, is it under that the neighboring country Sneer? I think Sneer. जॉर्डन नहीं, जॉर्डन के अंदर नहीं है एक्चुअली। इजराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जस्ट अ सेकंड, ये इजराइल है, ये जो एरिया है ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, राइट साइड में इसके जॉर्डन रिवर लगती है, डेड सी लगता है, और रिवर के उस साइड है जॉर्डन कंट्री। अगेन दिस इज द गाजा स्ट्रिप विच मीट्स मेडिटेरेनियन सी। तो जो वेस्ट बैंक एरिया है ना, एक्चुअली ये पूरा एरिया जो है इट कम्स अंडर द पैलेस्टाइन along with the Gaza Strip, but
द करंट सिचुएशन इज कि इसके भी कुछ एरियाज इजराइल ने अपने ऑक्यूपेशन के अंदर ले लिए हैं, ठीक है। सो वेस्ट बैंक not internationally recognized as of now but comes under the Philistine or Palestine along with the Gaza Strip. Sinai was also at some point part of Israel. Not exactly. Sinai has always been part of Egypt, but 6-day war में इजराइल ने सिनाई को एनेक्स कर लिया था, बट उसके बाद जो उनके अकॉर्ड्स हुए थे, it gave back Egypt, gave back Sinai Peninsula to Egypt. Okay, is your query solved? Yes, sir. Any other doubts? Any other doubts? So the current अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर सिचुएशन इज गोइंग ऑन, उसके लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करना है? लाइक शुड वी डू इंडियाज रिलेशनशिप्स विद बोथ ऑफ द कंट्रीज और सी एनीवे जो यूक्रेन के साथ इंडिया के रिलेशंस है वो ज्यादा डीप नहीं है, सो एनीवे इट इज गोइंग टू टेक 5 मिनट्स ऑफ योर स्टडी रूटीन, जो कि एनी डे आप किसी भी न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। रशिया जो इंडिया रशिया रिलेशंस हैं दे आर वेरी वास्ट, और वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, वो भी डीप में करवा दिए जाएंगे। एनीवे जो as you must have been tracking as well in the recent years, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता या फिर सिंगल फेसेटेड क्वेश्चन नहीं आता कि इंडिया रशिया रिलेशंस पे क्वेश्चन कीजिए या इंडिया रशियन यूक्रेनियन इशू पे इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइए, ऐसा नहीं होता। पूरे के पूरे रीजन में होता है कि ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस में है, उसमें इंडिया का क्या रोल है या फिर उसमें क्या हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो उसके लिए जो हमने नंबर 1 you have to look it from the geographical point of view. We did the Nord Stream part, the Baltic Sea, we did the Black Sea, we also did the Eastern European countries, these Belarus and other countries earlier in the classes. We have also done the West Asian, Southwest Asian region today, this Israel and the other region. So geographically this whole area is covered और इससे आगे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो डिटेल में जो होता है वो एज इट इज आप पढ़ते रहोगे, नो चेंजेस। स्पेसिफिकली यू नीड नॉट रीड मच इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट और दिस वॉर, दिस इज अ वेरी लिमिटेड और वेरी स्मॉल स्केल वॉर, वॉर भी नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ एन इन्वेजन ओनली। सो इसमें आपको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड लोकेशंस जो है दैट यू नीड टू सी, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने जैसे नॉर्ड स्ट्रीम करा, मिन्स्क एग्रीमेंट करा, बस ये करने की जरूरत है और कुछ। यस सर। ओके, सो मोर क्वेश्चंस? डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? No, sir. Thank you, sir. Okay, so thank you. We'll conclude our class. Thank you, Move sir. forward to our class next. Thank you. Stay safe, stay healthy.